Good morning, my dear students. Today we were going to discuss about our last chapter that we all study class 11th English Hormel lesson 3 discovering truths. Discovering truth. The saga continues. Discovering truth. The saga continues. By E.R. Williams, who is the writer of this chapter? Y.A.R. Williams. Y.A.R. Williams. Okay. What is the name of this chapter? Name of this chapter: Discovering Truth. The saga continues. The saga continues. Okay. Let's start our summary. Look, my dear. First of all, we have to summary. Okay. Now start summary. Discovering Truth. The saga continues. The saga continues. Is a chapter. या ये क्या है? चैप्टर है. Which give us an in-depth insight of Tunankulam. Okay, I think you all know about this chapter. Give us about Tunankulam, the last ruler of the powerful Pharaoh dynasty in Egypt. Okay, Tunankulam is the last ruler of the powerful Pharaoh dynasty. In which dynasty? Pharaoh dynasty. Where? In Egypt. Okay, where in Egypt? He was a teenager. He was a teenager. I think you all know about teenager. I already told you that teenager means about or we can say 60 to 90 years old. Old a child we call teenager. Okay, so he was a teenager when he died. You mean, or we can say I mean, when he died, when he was a teenager, and his death was a mystery. Mystery means mystery. I think he left most of fun. Okay, so he was a mystery. Some speculated that he was murdered, and I think some speculated. Then he left here some sign of the murder of whose Tanankulam at Tunankulam. Okay, he was murdered. He ruled in Egypt. He ruled in Egypt and its empire for centuries. The king of the king of Egypt here ruled by his empire for centuries. In 1922, his tomb was discovered by Howard Carter, who is the inventor of this discovery. Howard Carter, a British archaeologist. Who is this? A British archaeologist. After 80 years, we have read it. After 80 years, he was taken from his resting place. The dead body of that particular king was taken from resting place for CT scan. For whom? For CT scan, which offered to solve the mystery of his life. For what? For what? For CT scan. Okay, for his life and death by creating a forensic reconstruction. Forensic reconstruction means a library. Tut's father or grandfather, Amenhotep III. Amenhotep III was the father or grandfather of Tut. Was a very powerful pharaoh. Was a very powerful pharaoh who ruled over a period of 40 years. How many years he was ruled of this particular country? A period of 40 years. Its son Amenhotep IV thrived him.
and began the strongest period in the history of Egypt. I mean, Amenhotep IV thrived him and began the strongest period in the history of Egypt. He promoted the worship of Aten. Aten means the sun disk. Okay, he changed his name to Akhenaten, meaning servant of the Atens. मीनिंग क्या है? सर्वेंट ऑफ द एटम्स, यानी एटन का सेवक है वो. ओके. ही आल्सो मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थीव्स. ही आल्सो मूव्ड, सॉरी देखिए मैं हिंदी में करता हूँ, आपको पूरा समझ में नहीं आएगा. वैसे मैं इसको समझा चुका हूँ एक बार, इसीलिए मैं आपको इसको इंग्लिश में समझाने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि जब मैं इसको आपको इंग्लिश में समझाऊंगा तो आपकी वो भी समझ में आएगा, क्योंकि आप एक बार इसको पढ़ चुके हैं. ओके. तो ही चेंज्ड हिज नेम टू Akhenaten, meaning servant of the Athens. He also moved the religious capital, वह धार्मिक राजधानी को लेकर कहाँ गया? फ्रॉम थीव से टू द न्यू सिटी ऑफ Akhenaten कॉल्ड अर्मना, जिसको आज क्या बोलते हैं? अर्मना. ओके. फर्दर आगे, ही अटैक्ड अमुन, उसने अमुन पर अटैक किया. अ गॉड स्मार्ट हिज इमेज, यानी एक जो भगवान की इमेज थी उसको भी नष्ट कर दिया. एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल, उसके मंदिर को बंद कर दिया. एंड अदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीड हिम, और वहाँ पर एक कोई दूसरा शासक भी सक्सीड हुआ. हु डेड सून, वो जल्द ही एक्सपायर हो गया. नेक्स्ट, टूनंग खामुन आल्सो नॉन एज टुट, यानी टूनंग खामुन जो था ना, वो किसके नाम से जाना जाता था? टुट के नाम से जाना जाता था. सेट ऑन द थ्रोन, जो कि गद्दी पर बैठा. एंड रूल फॉर 9 years, यानी 9 साल के लिए उन्होंने शासन किया. ही वर्शिप्ड गॉड अमुन इन द ओल्ड वे, यानी पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से भगवान अमुन की पूजा करता था. हाउ एवर, फिर भी ही डैड मिस्टीरियसली, फिर भी इसके बाद कैसे मरा? मिस्टीरियस रूप में मरा, यानी मरने का कोई निश्चित पता नहीं चला. ठीक है. मिस्टीरी मीन्स क्या होता है? रहस्यमय मौत हुई उसकी. व्हेन टुट्स मम्मीफाइड बॉडी, यानी मम्मीफाइड मतलब क्या होता है कि एक ऐसी डेड बॉडी जिसके ऊपर मम्मी का लेप किया गया हो. ठीक है. मम्मीफाइड बॉडी बाय डिस्कवर्ड, यानी खोजी गई. ही बाय लेड विथ लॉस ऑफ गोल्ड, वह बहुत से सोने के साथ दफनाया गया था. वेल्थ एंड एवरीडे आइटम्स लाइक अ ब्रॉन्ज रेजर, गेम्स क्लॉथ, केक्स ऑफ केजेस ऑफ फूड एंड वाइन, यानी इसके साथ क्या क्या था? एक ब्रॉन्ज रेजर था, गेम्स थे, कुछ क्लॉथ थे, केस ऑफ फूड्स एंड वाइन, यानी भोजन और शराब पीने के जो प्याले थे उनके साथ वो उसको दफनाया गया. कार्टर डिस्कवर्ड हिम, कार्टर ने उसको खोजा. आफ्टर सर्चिंग फॉर मैनी ईयर्स, कुछ सालों को सर्चिंग के बाद, आफ्टर रिसर्चिंग ऑन द ट्रेजर, ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, उसने डिसाइड किया कि उसकी जो 3 नेस्टेड कॉफिन है उसको भी वो खोजेगा. सम पार्ट्स ऑफ द टोस्ट ट्रेजर इन द टॉम वर ऑलरेडी लूटेड, यानी कुछ भाग तो उसका कहाँ पर था? टॉम में था, जो कि पहले से ही लूटा जा चुका था. ओके. हिज टॉम वाज रॉक कट, उसका टॉम कैसा था? रॉक कट था, यानी चट्टानों के कट के अंदर था. 26 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट गहरे था. ठीक है. विच हैड वॉल पेंटिंग, जिसमें उसकी दीवार में पेंटिंग थी. ऑन द आउटर कॉफिन के बाहरी तरफ. टूथ फेस वाज गिल्डेड, उसका मतलब सुनहरा चेहरा था. इन द फर्स्ट कॉफिन, पहले ही कॉफिन में, कॉफिन मीन्स क्या होता है? ताबूत जिसमें हम मृत शरीर को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉफिन. ठीक है. ही फाउंड द गार्लैंड ऑफ ओलिव, उसने जैतून की एक माला मिली वहाँ पर. लोटस पेटल, यानी कमल की पंखुड़ियाँ मिली. एंड कॉर्न फ्लावर, और मकड़ी मिली, या जो मकई का पेड़ होता है उसकी मिली. ठीक है. इट शो दैट, यह दिखाता है दैट की ही बाज बरिड, कि उसको दफनाया गया था इन द मंथ ऑफ मार्च एंड और अप्रैल, इसको मार्च और अप्रैल में दफनाया गया. ठीक है. द थर्ड एंड फाइनल कॉफिन पुर कार्टर इनटू ट्रबल, यानी जब उसने लास्ट को देखा तो वो कैसा हो गया? परेशानी में पड़ गया. ठीक है. द रेजेंस यूज टू सीमेंट, यानी जो रेजन उस पर जो चिपचिपा पदार्थ छोड़ा गया वो किसका काम कर रहा था? सीमेंट का. टुट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन वाज हार्डन इनफ मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मूव, यानी उसको मूव करने के लिए वो कैसा था? इम्पॉसिबल था, यानी बहुत ही सीमेंट की तरह वो कड़ा हो गया था. ठीक है. ही पुट द कॉफिन इन द सन फॉर सेवरल हॉर्स इन होप फॉर द रीजन टू लूजन अप, बट इट डिडंट वर्क, यानी उसने उस कॉफिन को कहाँ रख दिया? सूरज की तेज धूप में रख दिया, इस आशा में कि उसका जो रीजन है वो चिपचिपा वो लूज हो जाएगा. ठीक है. पर ऐसा कुछ काम तो नहीं होगा.
फाइनली ही रिमूव द रेजिन विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर। उसने आखिर में उसने किससे हटा दिया उसको, छेनी और हथौड़े से उसको हटा दिया। कार्टर फेल्ट ही डिडंट हैव एनी अदर चॉइस। उसने मेरे से महसूस किया कि उसका कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। एज टू इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। उसने लिम्ब टू लिम्ब में उसको मम्मी को काट दिया। थीव्स वुड हैव लूटेड, जो चोर थे उसको लूटने की कोशिश की, ले गए द गोल्ड, सोने को। हिज मैन फर्स्ट, उसके लोगों ने पहले तो रिमूव्ड हिज हेड, उसके शरीर से उसके हेड को अलग किया, हेड मीन सिर को अलग किया। देन इसके बाद दे कट ऑफ एवरी जॉइंट, इसके बाद उन्होंने उसके प्रत्येक भाग को काट दिया। आफ्टर रिमूविंग द बॉडी पार्ट्स, उसको हटाने के बाद, सभी पार्टों को अलग अलग करने के बाद, दे प्लेस्ड इट, उन्होंने उसको रख दिया ऑन द लेयर ऑफ सैंड, सैंड की लेयर पर रख दिया। इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में, एंड पुट इट द ओरिजिनल प्लेस, और उसको ओरिजिनल प्लेस पर रख दिया। इन 1968 द मम्मी वाज एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर, यानी एक एनाटॉमी शरीर रचना शास्त्र के एक प्रोफेसर थे, उनके द्वारा उसको सीटी स्कैन किया गया, ठीक है, या एक्सरे किया गया। रिवील्ड फ्यू फैक्ट्स, और उन्होंने कुछ फैक्ट्स भी दिखाए। हिज ब्रिस्ट बोन, उसकी छाती की हड्डी, एंड फ्रंट रिब्स, और उसके आगे की पसलियाँ बर मिसिंग, गायब थी। लेटर, बाद में, ऑन जनवरी 5, 2009, यानी 5 जनवरी 2009 की बात है, टुट बाय टेकन फॉर सिटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी के लिए इसको लाया गया। स्कैन विच टेक हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे एंड क्रिएटेड आर 3 डायमेंशनल इमेज, और उसको 3 डायमेंशनल इमेज, 3D इमेज बनाई गई। द नाइट ऑफ द स्कैन की रात को, द वर्कमैन कैरिड हिज बॉडी फ्रॉम द टॉम इन अ बॉक्स, उसको वहाँ से एक बॉक्स में लेके आए। दे क्लिम्ब रैम्प, वो रैम्प पर चढ़े, एंड स्टेयर, और सीढ़ियों से गए, एंड लिफ्टेड इट ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर, उसको एक हाइड्रोलिक ट्रेलर के द्वारा उसको ले जाया गया। दैट हेल्ड द स्कैनर, जहाँ पर क्या था, स्कैनर था। द स्कैनर स्टॉप वर्किंग विच पॉइंट द प्रोड्यूसर, यानी स्टॉप, जो उसने स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया, और उसकी जो प्रोसीजर था वो रुक गया। आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस, यानी वहाँ पर जो स्पेयर फैंस लगाया गया, उसके बाद उसने काम करना शुरू किया। द स्कैन बाय फाइनली डन, स्कैन कैसा हो गया, पूरा हो गया। आफ्टर 3 हॉर्स, 3 घंटे बाद, देखिए 3 घंटे आप याद रखना है। हिज बॉडी बाज टेकन बैक टू हिज टॉम वेयर हिज बॉडी इज रेस्टिंग इन पीस, इसके बाद उसकी बॉडी को लाया गया जहाँ पे वो शांति से रखी हुई थी। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग, ओके। किंग टुट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूनिटी, यानी उसको समानता के साथ कई बार क्यों दफनाया गया, बार बार क्यों दफनाया गया, ठीक है। तो किंग टुट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड, उसको दफनाया गया, टू रिपीटेड, बार बार, स्क्रूनिटी यानी समानता के साथ, बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास की वजह से। हिज ट्रीजर, उसके धन संपन्नता, बिच, जो कि ही बाज बरीड, जो कि उसके साथ दफनाया गया था, विथ, एंड टू नोन द रीजन बिहाइंड हिज डेथ, और उसकी मौत के पीछे उस सब का रीजन था, कारण था। हार्वर्ड चार्टर्स इन्वेस्टिगेट बाज रिजेंटेड, जो हार्वर्ड चार्टर थे ना, उन्होंने नाराजगी प्रकट क्यों की, रिजेंटेड यानी नाराज क्यों हो गए इन्वेस्टिगेशन पर। तो हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिजेंटेड बिकॉज ऑफ हिज अनसाइंटिफिक मेथड, क्यों गुस्सा हो गए वो, क्योंकि उसके जो मेथड थे वो कैसे थे, अनसाइंटिफिक मेथड थे। टू कट ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी को काटने के लिए, फ्रॉम द टॉम, कहाँ से, टॉम से। ही आल्सो फोकस मोर ऑन ट्रुथ्स वेल्थ एंड लेस ऑन टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ ट्रुथ्स लाइफ एंड डेथ। मीनिंग है यहाँ पर कि ही ऑल्सो फोकस्ड मोर ऑन ट्रुथ्स वेल्थ, यानी उन्होंने उसकी जो धन संपदा थी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, बजाय उसकी मिस्ट्री को, उसकी गुत्थी को सुलझाने की बजाय, ठीक है। कार्टर हैड टू चीजल अवे द सॉलिफाइड रेजिन टू रेज द किंग्स रिमेंस, यानी जो उसका रिमेंस बचा हुआ था, शेष भाग बचा हुआ था, उससे उसको हटाने के लिए उन्होंने छेनी का प्रयोग किया। तो कार्टर हैड टू चीजल अवे द सॉलिडिफाई, कठोर उसको हटाने के लिए, रेजन को, टू रेज द किंग्स रिमेंस, यानी जो उसका बचा हुआ भाग था उसको हटाने के लिए, बिकॉज, क्योंकि द बॉडी वाज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफन, यानी जो सोने के जो कॉफन था उसमें वो पूरी तरह से सीमेंटेड हो चुकी थी। एज द रेजिन हैड हार्डन, और उसका जो रेजिन था ना, चिपचिपा पदार्थ, वो हार्डन हो गया था, कठोर हो गया था। नो फोर्स कुड मूव द बॉडी अवे, यानी कोई भी बल वहाँ पर काम नहीं कर रहा था। एंड कीपिंग द बॉडी इन द सन,
और बॉडी कहाँ ले जाया गया, सन की धूप में ले जाया गया। अंडर 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट आल्सो डिड नॉट हेल्प, यानी 149 डिग्री का फ़ारेनहाइट का प्रकाश डाला गया फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। टुट्स बॉडी वाज बरीड अलोंग विद ग्लैड टीजर्स, यानी सोने के उसके साथ उसको दफनाया गया, ऐसा क्यों। टुट्स बॉडी वाज बरीड अलोंग विद गिल्डेड टीजर्स एज द एंशिएंट इजिप्शियन रॉयल्स वर एक्सट्रीमली वेल्थ, जैसा कि वो पहले धनी थे उनके यहाँ पे ऐसे हुआ करता होगा। दे आल्सो बिलीव दैट, वो ऐसा विश्वास करते थे दैट कि द रॉयल्टी वुड टेक ऑल द ट्रीजर्स विद देम इन देयर आफ्टर लाइफ, यानी वो अपने जीवन में सारी की सारी सोने की चीज़ें अपने साथ ले जाएंगे। ओके, द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टूनंखिटम टू टूनंखामुन। ओके, उसने अपना नाम चेंज क्यों किया। टूटनखामुन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमुन, यानी इसका मीनिंग क्या है। टूनंखामुन का मीनिंग होता है कि लिविंग इमेज, जीवित चित्र, ऑफ अमुन, अमुन की जीवित चित्र। अमुन वाज अ मेजर गॉड ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, अमुन कौन थे, उसके प्राचीन काल के, मिस्र के प्राचीन काल के बहुत बड़े देवता थे। आमेनहोटेप III स्माश्ड एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल, उन्होंने जो आमेनहोटेप जो थर्ड थे उन्होंने उसके मंदिर को और उसकी मूर्ति को तोड़वा दिया था और उसको बंद करवा दिया था। लेटर बाद में टुट रीस्टोर्ड हिज टेम्पल, और बाद में टुट ने क्या किया, उसके टेम्पल को फिर से पुनर्निर्माण किया। एंड बिलीव्स बैक इन हिज एम्पायर, और उनके एम्पायर साम्राज्य को वापस लेके आया। दैट इज वाई, ऐसा क्यों हुआ। दैट इज वाई ही चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटनखिटम टू टूटनखामुन टू चूज हिज बिलीफ इन द गॉड, उन्होंने अपना नाम इसलिए चेंज किया ताकि उनका विश्वास भगवान में बना रहे। लिस्ट द डीड्स, यानी लिस्ट बनाएंगे जो काम उन्होंने किए। किसने, लिस्ट द डेट्स दैट लेड, जो किसके नेतृत्व में हुए, लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनेटम एज बेकी, यानी जो उन्होंने उन कार्यों की लिस्ट बताई गई जो अखेनेटम को क्या बताते हैं, सन की बताते हैं, पागल बताते हैं, या विचित्र बताते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन किसको, अखेनेटम को। अकॉर्डिंग टू रे जॉनसन द अखेनेटम वाज बेकी, यानी वह वास्तव में विचित्र था, बिकॉज क्योंकि ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, इन सब रीजनों की वजह से। देखते हैं कौन कौन से रीजन है। फर्स्ट वन, ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन इंस्टीड ऑफ अमुन, यानी उन्होंने भगवान एटन की पूजा करना शुरू किया था, किसके स्थान पर, अमुन के। ठीक है, अगला है ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनेटम, यानी उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से, थीब्स से लेकर कहाँ ले गए, अखेनेटम। अगला है ही स्माश्ड अमुन्स इमेज, उन्होंने उसकी इमेज को चूर करवा दिया। ही क्लोज्ड अमुन्स टेम्पल, और उन्होंने उसके टेम्पल को भी क्लोज करवा दिया, बंद करवा दिया। ही चेंज्ड हिज नेम, और उन्होंने अपने नाम को चेंज करवा दिया टू अखेनेटम और सर्वेंट ऑफ एटन, और उसको अपने आप को क्या बताने लगे, सर्वेंट ऑफ एटन, उसका सेवक बताने लगे। ठीक है, बाट द रिजल्ट ऑफ द सिटी स्कैन का रिजल्ट क्या था। द रिजल्ट ऑफ सिटी स्कैन बर आस्टोनिशिंग, वो कैसा था, विस्मयकारी था। विच वाज 1700 डिजिटल एक्सरे क्रॉस सेक्शंस ईच अदर, यानी 1700 उस पर जो डिजिटल एक्सरे लाइट डाली गई, वो कैसे, क्रॉस सेक्शन में एक दूसरे को काटते हुए, टू मेक अ 3 डायमेंशनल इमेज, जिस पे 3D इमेज बने। अ ग्रे हेड, सुनहरा सिर, एपियर दिखाई दिया, एंड हिज वर्टिब्रे वर शोन, और उसकी वर्टिब्रल दिखाई दिया गया। द इमेजेस ऑफ द हैंड, यानी इसका किसका इमेज दिखाई गई, उसके हाथ की, रिबकेज पसली पिंजरों की, एंड स्कल खोपड़ी की, बरसोन विच वर सो क्लियर, जो कैसे थी, बिल्कुल क्लियर थी। लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस, यानी ऐसी चीज़ों की आप
लिस्ट बनाइए एडवांस इन टेक्नोलॉजी में दैट जो हैव इम्प्रूव्ड, जो सुधार लाएगी, दैट हैव इम्प्रूव्ड, जो सुधार लाएंगी कहाँ पर, फोरेंसिक एनालिसिस में, यानी जो फोरेंसिक विश्लेषण है उसमें हमारे लिए सहायता करेंगी, उनकी लिस्ट बताइए। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के अनुसार इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल फॉर मैनी साइंटिफिक टेस्ट टू बी कैरिड आउट इन अ मोर एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ अ क्राइम, यानी जिससे बहुत से क्राइम या अपराध को रोकने के लिए बहुत सी चीज़ें हमारे पास हैं। फर्स्ट वन है एक्सरे, सेकंड वन सीटी स्कैन, थर्ड में पोस्टमार्टम, अगला है बायोप्सी एंड ऑटोप्सी आर नाउ पॉसिबल, ये सब कैसी हैं, संभव हैं आज के ज़माने में। ओके, अगला है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग्स टूथ इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ, यानी जो पहली मम्मी थी वो टूथ की थी, उसको स्कैन किया गया किसकी तरह, एक जीवन की तरह। टूथ्स मम्मी बाय द फर्स्ट वन टू बी एक्सरेड इन 1968, यानी 1968 में जो टूथ की मम्मी थी ना, टूथ की लाश थी, उसको पहली बार एक्सरे किया गया। एंड लेटर, और बाद में इन 2005 में द फर्स्ट टू बी स्कैन थ्रू कंप्यूटिंग टोमोग्राफी, किसके द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा। कंप्यूटिंग टोमोग्राफी का मीनिंग होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन रिवील्ड न्यू 3 डायमेंशनल इमेज, उन्होंने क्या दिखाया उसको, 3D इमेज दिखाई ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी की, विच आंसर्ड मैनी क्वेश्चन, जिसने उनके कई क्वेश्चन की क्या दिए, आंसर दिए। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द टेस्ट। डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप ऑफ 2 पेयर्स, ईच पेयर इन अ ग्रुप टेकिंग ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यू। साइंटिफिक इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड बट मिस्ट्री, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट मैं नहीं मानता। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। इनका कोई खास महत्व नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 7, टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक आर द रीजन्स, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, आर द रीजन्स फॉर द एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मीन्स होता है विलुप्तीकरण ऑफ लैंग्वेज। आप किन के रीजनों को उसकी विलुप्ति के कारण मानते हैं, किसकी विलुप्ति के कारण, भाषा के। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। ठीक है, आ लैंग्वेज बिकम एक्सटिंक्शन, यानी एक भाषा बिकम है एक्सटिंक्ट, यानी विलुप्ति की कारण, व्हेन इट्स यूज इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक क्लास, यानी इसका जो यूज है वो उसका रिस्ट्रिक्टेड, यानी उसको हटाया जा रहा है, टू स्पेसिफिक क्लास, यानी एक विशेष क्लास से और कैटेगरी से ऑफ पीपल, यानी एक भाषा जो है ना वो कब विलुप्त हो जाती है, जब उसको एक नियमित स्टेट में या नियमित क्षेत्र में नहीं बोली जाती, तो उसका क्या हो जाता है, विलुप्तीकरण हो जाता है। सेकेंडली, दूसरी तरफ से द हार्शनेस ऑफ रूल्स, यानी जो कड़े रूल्स होते हैं, एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, और लचीलेपन की कमी होती है, इन यूजेज आल्सो कंट्रीब्यूट इन एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेज, इसी तरह से भाषाओं का क्या हो जाता है, विलुप्तीकरण हो जाता है। ओके, डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व लैंग्वेज, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं, डू यू थिंक, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट, यह आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, टू प्रिजर्व, यानी उसको सुरक्षित रखना, किसको, लैंग्वेज को। यस, it is very important to preserve language as it helps us to understand our culture and traditions, यानी एक भाषा ही ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने कल्चर और अपने प्रचलन को समझ सकते हैं। इट हेल्प इन कल्चरल डेवलपमेंट,
इससे सांस्कृतिक डेवलपमेंट होते हैं एंड इट हेल्प अस टू कनेक्ट विद द इम्पोर्टेंट पास्ट इवेंट। और भाषा ही एक चीज़ है जो हमें पुरानी घटनाओं से हमें जोड़ती है। इट गिव अस नॉलेज अबाउट लिटरेचर एंड द हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज। यानी भाषा ही एक चीज़ है जो हमें किसके बारे में ज्ञान देती है, लिटरेचर साहित्य के बारे में एंड इतिहास के बारे में, और भाषा के इतिहास के बारे में। ठीक है, यानी भाषा का लिटरेचर, भाषा का साहित्य और भाषा का इतिहास दोनों जानने के लिए हमें भाषा को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन व्हाट वे, कौन कौन से तरीक़ों से डू यू थिंक वी कुड हेल्प प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। यानी किस तरह से हम भाषा और बोलियों के विलुप्तीकरण को रोक सकते हैं। तो देखिए, वी वुड हेल्प प्रिवेंट टू एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेजेज एंड डायलेक्ट्स इन द फॉलोइंग वे। देखिए, तो 3 यहाँ पर वो उसके आंसर दिए हुए हैं, 3 रास्ते हैं ऐसे। बाय इंक्लूडिंग द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स इन स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम। यानी बाय इंक्लूडिंग, जोड़ने के द्वारा, कहाँ पर, टीचिंग में, किसको, लैंग्वेज एंड भाषा और बोली को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में उसको जोड़ा जाए तो उस तरह से हम इसको बनाए रख सकते हैं। बाय प्रमोटिंग द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट वर्बली, यानी उसको मुँह से बोलकर उसको प्रमोट किया जाए। अगला है बाय कंडक्टिंग सेमिनार, यानी सेमिनार को बुलाकर एंड प्लेज, नाटक को कर टू पास द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स टू नॉर्मल पीपल। यानी जो साधारण लोग हैं उन तक इसको किसी भी तरह से पहुंचाकर उसको बनाए रखा जा सकता है। ओके, अगला है बाय इन्वाइटिंग पीपल टू टेक अ फ्यू मंथ्स कोर्स अबाउट लर्निंग लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। बिल्कुल सही बात है, यानी लोगों को बुलाएं आप कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, और उसका कोर्स कराया जाए उसकी भाषा या उस बोली का। ठीक है, तो उसके 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए। ठीक है, अगला है वर्किंग विथ बर्ड्स। घोस्टली डेविल्स जे नथिंग इम्पोर्टेंट। हियर आर सम कॉमनली यूज मेडिकल टर्म्स। यानी यहाँ पर साधारण रूप से कुछ मेडिकल टर्म्स दिए गए हैं। फाइंड आउट देयर मीनिंग, इनकी मीनिंग निकालिए, जो वास्तव में हमें एक दैनिक जीवन में भी आवश्यक होते हैं और हमें इस चैप्टर के हिसाब से भी आवश्यक हैं। सीटी स्कैन क्या बताया था, कंप्यूटर टोमोग्राफी। इट इज अ 3 डायमेंशनल स्कैन ऑफ अ बॉडी। यानी यह क्या काम करती है, 3D पिक्चर बनाती है, 3D स्कैन करती है एक बॉडी का विद द हेल्प ऑफ 100 ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन टुगेदर। एक साथ क्रॉस करके जो हजारों उसमें क्या किरण बीम डाली जाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सीटी स्कैन। अगला है MRI। MRI मैग्नेटिक रिकॉर्ड इमेजिंग, जिसका क्या है फुल फॉर्म है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अ मेडिकल एग्जामिनेशन, क्या है, एक मेडिकल परीक्षण है। बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, एंड रेडियो वेव्स, और रेडियो तरंगों के द्वारा, टू क्रिएट अ डिटेल्ड इमेज ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यानी एक बॉडी की जो कोई खास ऑर्गन होता है उसको उसकी इमेज बनाई जाती है, किसके द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा और रेडियो तरंगों के द्वारा। टोमोग्राफी अ टेक्निक यूज्ड टू डिस्प्ले अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। यानी एक ह्यूमन बॉडी का क्रॉस सेक्शन को डिस्प्ले करने के लिए इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। यूजिंग हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे ऑफ अल्ट्रासाउंड, यानी हजारों एक्सरे करने पड़ते हैं और अल्ट्रासाउंड करने पड़ते हैं, किसमें, टोमोग्राफी में। ठीक है, अगला है ऑटोप्सी। देखिए, ऑटोप्सी क्या होता है, आप पोस्टमार्टम, एक पोस्टमार्टम यानी शरीर का चीरफाड़, एग्जामिनेशन यूज टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द डेड पर्सन। यानी मरे हुए व्यक्ति की मौत का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, ऑटोप्सी का। अगला है डायलिसिस द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। डायलिसिस होता है वो शुद्धिकरण का काम आधार पर काम करती है, ऑफ ब्लड, किसके, ब्लड की, विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, एक मशीन के द्वारा, विच वर्क्स एज अ सब्सटीट्यूट फॉर किडनी, जो कि किडनी के रूप में काम करती है। देखिए, यानी डायलिसिस एक ऐसी मशीन है जो कि किडनी के रूप में, किडनी की जगह पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, अगला है ECG ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ECG का फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ओके, इट इज अ प्रोसेस टू टेस्ट द साइन ऑफ हार्ट डिसीज
इसके द्वारा किसका प्रयोग किया, किसको जांचा जाता है, किसका टेस्ट किया जाता है, हार्ट डिसीज यानी हृदय की बीमारियों को, बाय रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थ्रू स्मॉल इलेक्ट्रोड्स अटैच टू द चेस्ट। जो हम छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको छाती से लगा देते हैं और उनकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, जिसको कहाँ लगाया जाता है, चेस्ट से, आर्म से और लेग से। अगला है पोस्टमार्टम, एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू नोन द कॉज ऑफ द डेथ, यानी पोस्टमार्टम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मरे हुए लोगों का पता लगाया जाता है कि मरा कैसे है। अगला है एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी मीन्स रेडियोग्राफी ऑफ ब्लड और लिम्फ वेसल्स, यानी किसकी रेडियोग्राफी की जाती है, ब्लड की और ब्लड में पाए जाने वाले लिम्फ वेसल्स की। अगला है बायोप्सी, बायोप्सी का मीनिंग होता है एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव फ्रॉम अ लिविंग बीइंग टू नोन द रीजन फॉर द डिसीज, यानी किसी भी जीवित चीज़ के शरीर से हम कुछ टिश्यू निकाल लेते हैं, ऊतक निकाल लेते हैं और उनका एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है, किसी बीमारी को पता लगाने के लिए। हो गया। अब बात करते हैं एमसीक्यूज। हु बाय टूटनखामुन कौन था, हु बाय टूटनखामुन, अ जियोलॉजिस्ट नहीं, अ साइंटिस्ट नहीं, एन इजिप्शियन किंग, बिल्कुल सही बात है। हु बाय टूटनखामुन कौन था, एक इजिप्शियन राजा था, तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। ओके। व्हेन डिड टूट डाई, यानी टूट कब खत्म हो गए थे, व्हेन ही वाज टीनेजर, बिल्कुल करेक्ट है, जब वह क्या थे, एक टीनेजर थे, एक बालक अवस्था में थे, व्हेन ही वाज अ टीनेजर, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला है हु डिस्कवर्ड टूट्स टॉम्ब एंड व्हेन, यानी किसने उसको खोजा था और कब खोजा था, हु डिस्कवर्ड किसने खोजा था, टूट्स टॉम्ब, टूट्स के टॉम्ब यानी मकबरे को या उसको, एंड व्हेन और कब, तो एडम कूपर नहीं, हावर्ड कार्टर इन 1922, बिल्कुल सही है, हावर्ड कार्टर ने इसको खोजा था 1922 में। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा एकदम सही है। व्हेन बाय टूट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड, यानी उसकी बॉडी मिलने के बाद उसको सीटी स्कैन के लिए कहाँ ले जाया गया, ठीक है, सॉरी, व्हेन बाय टूट्स बॉडी टेकन यानी कब ले जाया गया, 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 80 ईयर, बिल्कुल सही है, कब, आफ्टर 80 ईयर, 80 वर्ष बाद उसको चेकअप के लिए ले जाया गया, ठीक है। अगला है फॉर हाउ मेनी ईयर डिड अमेनहॉटप III रूल इजिप्ट, यानी जो अमेनहॉटप जो तीसरे थे उन्होंने कितने सालों के लिए वहाँ पर राज किया था या शासन किया था, तो 5 ईयर, 20 ईयर, 10 ईयर, 9, और आर रॉन्ग, करेक्ट वन इज डी, 40 ईयर्स, उन्होंने 40 साल तक शासन वहाँ पर अपना किया था। ओके। हु प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क, यानी सूर्य चक्र को किसने प्रमोट किया था, उसने किसको बढ़ावा दिया था, टूटनखामुन ने नहीं, अमेनहॉटप III नहीं, अमेनहॉटप IV, किसने बढ़ावा दिया था, अमेनहॉटप IV ने, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट है। भाट नेम डिड अमेनहॉटप IV चेंज टू, यानी उसने अमेनहॉटप IV ने अपना नाम किस में चेंज किया था, अमरनाथ में नहीं, अतुल में नहीं, अखिनेटम, बिल्कुल करेक्ट है, किसमें, अखिनेटम में चेंज कर लिया था, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड टूटनखामुन रूल इजिप्ट, टूटनखामुन ने जो इजिप्ट या मिस्र पर राज कितने साल तक किया था, 9 ईयर्स, बिल्कुल करेक्ट, कितने साल, 9 साल उसने अपना शासन किया था, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। बाद वाज फाउंड विथ टूटनखामुन्स बॉडी, टूटनखामुन की बॉडी के साथ क्या क्या मिला था, ठीक है, गोल्ड, अकेला गोल्ड नहीं था, इजिप्शियन गोल्ड कॉइन, जी भी अकेला नहीं था, नथिंग एज मच, ये तो गलती है। अगला है लास्ट वन, गोल्ड, बिल्कुल सही है, वेल्थ, बिल्कुल सही है, रेजर ब्रॉन्ज रेजर, बिल्कुल करेक्ट है, गेम्स, बिल्कुल करेक्ट है, क्लॉथ, केजेज ऑफ फूड एंड वाइन, ये सब सारी चीज़ें उसके साथ मिली थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब टूट्स टॉम्ब, टूट्स के टॉम्ब को आपने किस तरह से या मकबरे को आपने किस तरह से डिस्क्राइब किया है, ठीक है,
तो इसका है गोल्ड प्लेटेड नहीं, रॉक कट अकेला नहीं है, बॉल पेंटिंग विद गोल्ड ये अकेला नहीं है। अगला है रॉक कट, तो सही है, रॉक कट 26 फीट अंडरग्राउंड विच हैड बॉल पेंटिंग, यानी इसमें सारी ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम करेक्ट है। ठीक है, वाट वाज इन द फर्स्ट कॉफन, पहली कॉफन में क्या था सबको पता है, गार्लैंड ऑफ ओलिव, जैतून की माला, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर। ओके, तो पहले का सॉरी 11th का हमारा कौन सा आंसर है, पहला, जो कि सबको पता है और सबका सही होगा। ठीक है, वाट डिड द थर्ड कॉफन पुट कार्टर इंटरवल, यानी थर्ड कॉफन को रखकर वो यानी देखकर वो परेशानी में क्यों पड़ गए, यानी भाई डिड द थर्ड कॉफन पुट कार्टर इंटरवल, परेशानी में क्यों पड़ गए, तो इट वाज एम्प्टी है, खाली था, नहीं, द रेजन यूज टू सीमेंट, जो उसका रेजन था वो सीमेंट के रूप में यूज किया गया था, टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफन विच वाज हार्डन इनफ, जो कि कैसा हो गया था, बहुत ही कड़क हो गया था। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। हाउ डिड कार्टर रिमूव द रेजन, किस तरह से उसने रेजन को हटाया, विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर, बिल्कुल करेक्ट है, उसको छेनी और हथौड़े से उसको हटाया गया था उस रेजन को, किसके द्वारा, हाउ डिड द कार्टर रिमूव द रेजन, विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर, विद द चीजल एंड हैमर। ओके, 13 हो गया, 13 का फर्स्ट, हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ ट्रूथ, यानी किस तरह से उसकी बॉडी को काटा गया था, फर्स्ट हेड, पहले हेड काटा गया, एंड देन एवरी लिम्स, बिल्कुल करेक्ट है, पहले उसके हेड यानी उसके हेड को काटा गया, उसके मतलब पहले उसके शरीर से उसके सिर को अलग किया गया, इसके बाद उसके प्रत्येक जॉइंट को हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें यहाँ भी ऑप्शन हमारा पहला सही है, फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम्ब। अगला है 15, व्हाट डिड कार्टर एंड हिज मैन डू आफ्टर कटिंग डाउन हिज बॉडी, यानी बॉडी को काटने के बाद उसके लोगों ने और उसने क्या किया था। ठीक है, तो दे सेंट इट फॉर एक्सरे, नहीं, दे एग्जामिन इट देम केयरफुली, नहीं, दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, यानी उन्होंने उसको सैंड की लेयर पर रख दिया था और कहाँ पर, एक लकड़ी के बॉक्स में उसको रख दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, व्हेन बाय द मम्मी एग्जामिन्ड इन एक्सरे बाय द एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी प्रोफेसर के द्वारा उसको कब एग्जामिन किया था, कब उसको जांचा गया था, इन 1945, इन 1986, इन 1968, तो इन 1968 में उसको एग्जामिन किया गया था, कब, 1968 में उसको जांच किया गया था। बाहर फैक्ट बट रिवील्ड, यानी कौन से कारण सामने आए, व्हेन द मम्मी वाज एक्सरेड इन 1968, यानी 1968 में जब मम्मी का एक्सरे हुआ तो उसको सामने कौन कौन से फैक्ट आए, हिज सेवरल पोजीशंस वर मिसिंग, नहीं, हिज हिप बोन वाज मिसिंग, नहीं, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब वाज मिसिंग, बिल्कुल सही बात है, हिज ब्रेस्ट उसकी छाती की हड्डी एंड फ्रंट रिब और सामने वाली पसलियाँ मिसिंग थी, तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, व्हेन बाय टूथ्स बॉडी टेकन फॉर सिटी स्कैन इन द 21st सेंचुरी में उसको कब ले जाया गया था, जनवरी 5, 2005, वो करेक्ट है, यानी 2 जनवरी 1905 को उसको ले जाया गया था 21वीं शताब्दी में पहली बार, कब, जनवरी 5, 2005। ओके, भारत सिटी स्कैन स्टैंड फॉर किसके लिए, यानी किसको दिखाता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेलीग्राफी, नहीं, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन एकदम करेक्ट है, किसको, कंप्यूटर टोमोग्राफी को दिखाता है सीटी स्कैन। ठीक है, हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्कैन, यानी किस तरह से वो वर्कमैनों ने उसकी बॉडी को लिफ्ट किया स्कैन के लिए, थ्रू द स्टेयर्स, नहीं, ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर, बिल्कुल करेक्ट है, किसके द्वारा, ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर। बाय डिड द प्रोसीजर स्टॉप इन बिटवीन, बीच में ही क्यों रोका गया, एज स्पेयर फैन स्टॉप वर्किंग, जैसा कि स्पेयर फैन ने काम करना बंद कर दिया था, तो पहला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। व्हेन बाय टूथ बॉडी टेकन बैक इन हिज टॉम आफ्टर सीटी स्कैन, यानी उसकी बॉडी को सीटी स्कैन के बाद कब लाया गया, तो आफ्टर आ डे, नहीं, आफ्टर 3 आवर्स, बिल्कुल करेक्ट है, 3 घंटे बाद उसको वापस ले जाया गया, तो ऑप्शन बी, जब मैं देखिए आपको समरी पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने कहा था कि आपको 3 घंटे याद रखना है, आगे क्वेश्चन में आएगा
देखिए वही आंसर है। व्हाट इज द सेमेट्री ऑफ ट्रुथ कॉल्ड, यानी उसकी सेमेट्री, उसकी कब्रगाह को क्या बोलते हैं? वैली ऑफ द किंग्स, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या? वैली ऑफ द किंग्स, पहला ही आंसर क्या है? क्या है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसको पहले ही पढ़ चुके हैं ना, तो सारी चीज़ें रिविजिट तो हो रही हैं, उससे बाहर का थोड़ी ना पूछा जाता है। हाउ डिड ट्रुथ डाई, यानी ट्रुथ कैसे मर गए थे? इट इज़ अ मिस्ट्री, बिल्कुल सही बात है, एक रहस्य का बना रह गया था। क्या? एक रहस्य। Who said the mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920, यानी 1920 में जो कार्टर ने किया था उसके द्वारा मम्मी कैसी थी? बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। किसने कहा? जो कार्टर ने या जाही अब्बास ने? नहीं, उसमें किसने कहा था? कार्टर ने नहीं कहा था, जाही अब्बास ने कहा था कि उसकी मम्मी है जो बहुत ही बैड कंडीशन में। हाँ देखिए अगला है टुट बाय लेड टू रेस्ट, उसको रेस्ट के लिए रख दिया गया। लेडन विथ किससे? गोल्ड से, उसको गोल्ड के साथ उसको ला दिया गया था। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अगला है व्हेन डिड टुट डाइड, कब मरे थे? तो 22,009, मोर देन 33,000 ईयर्स अगो, बिल्कुल करेक्ट है। 33,000 साल पहले की बात वो थी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बाड बाय टुट्स लेविस्ड विथ, यानी टुट्स किसके द्वारा लेविस्ड थे? गोल्ड, सिल्वर, फ्लावर्स? नहीं, लेविश यानी क्या होता है? मोहित हुए। या लॉट्स ऑफ ज्वेल्स, या बहुत सी ज्वेलरी के साथ? नहीं। तो ग्लाइटनिंग गुड्स, यानी चमकती हुई सामान। प्रीसियस कॉलर, इनलेट नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, अ सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, शीथ्स फॉर हिज फिंगर एंड टॉय ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। ये सब चीज़ें कैसे की थी? प्योर गोल्ड की थी। तो इन्हीं के द्वारा वो मोहित हो गए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हाउ हैज आर्कियोलॉजी चेंज थ्रू द डिकेड, यानी किस तरह से डिकेड में आर्कियोलॉजिकल चेंज होती है? इसका ऑप्शन है डी, फोकसिंग लेस ऑन ट्रीजर, यानी जो ट्रीजर पे कम ध्यान देती है, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्री ऑफ डेथ, और उसकी जो रहस्यमयी जो मौत थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है। हु इज ओसिरिस, ओसिरिस कौन थे? गॉड ऑफ नेचर, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ? जय थे कौन? गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। ठीक है, हमारा एमसीक्यू खत्म हुआ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, कि हमें इसको किस तरह से समझना है और पढ़ना है। देखिए सभी स्टूडेंटों से मेरा एक ही कहना है कि आप लोग बिल्कुल पूरी हिम्मत के साथ तो इसको पढ़ें और पूरा ध्यान मग्न होकर पढ़ें, क्योंकि देखिए विदाउट डूइंग हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। वाट एवर यू डू, वाट एवर यू वांट, कुछ भी कर लो जो आप कर सकते हो, पर बिना मेहनत के तो कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी अचीव करना संभव नहीं है। सो प्लीज़ वर्क हार्ड, आई थिंक सो। ठीक है, चलिए बाय। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। ओके।